Hello, Aquarius people. Welcome to my love reading for you all. It's a reading for all the Aquarius zodiac signs. You can watch it as an Aquarius sun sign, Aquarius moon sign, Aquarius rising sign, and Aquarius Venus sign, since Venus is the goddess of love, the planet of love. So all these four signs will validate in my reading. This reading is all about love. The theme is of love, lovers, relationship, love angles, anything related to love. Okay, so you can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. So this reading is for Aquarius people. Welcome to my reading. Let's start with your reading. Okay, I'll be using 4 oracle decks, 4 multiple decks I'll be using. One is of Lovers Oracle deck, second is of Romance Angels Oracle deck, third is of Fairies Oracle deck, and fourth is of True Emotions Oracle deck. Okay, so these will be the 4 oracle deck cards that I'll be using in this whole spread of your reading. So let's start with your reading. Let's get the cards first. Card of feeling, card of intention, card of action. Card of feeling, card of intention, card of action. Okay, so let's start with your reading, Aquarius people. The first card says, let there be closeness between you. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Closeness भी ज़रूरी है love में, space भी ज़रूरी है. Don't cling on to the other person, you know. हावी मत हो जाइए उसके ऊपर. You should give space to each other, you should love each other, but that does not mean कि आप obsessive हो जाओ उस इंसान के प्रति, आप over passionate हो जाओ, over addictive हो जाओ. You know, balance maintain कीजिए. लव में बैलेंस मेंटेन करना या फिर ज़िंदगी में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अप डाउन उतार चढ़ाव होता ही रहेगा. सो let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Be giving, be allowing. अपने पार्टनर को या पार्टनर के साथ ज़्यादा रोक टोक मत कीजिए. मे भी हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर के प्रति. लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, ये मेंटालिटी है कि वो तो बड़ा पॉजिटिव है मेरे बारे में, इसका मतलब मुझसे प्यार करता है. नो, सर्टेनली नॉट. पॉजिटिव होना क्या? पॉजिटिव होना प्यार है क्या? पॉजेस किसको कहते हैं? पकड़ के रखना, अकड़ के रखना, ये पॉजिटिवनेस है, ये प्यार नहीं है. Isn't it? Are you getting the meaning of true love? So give space to each other, respect each other, have faith in each other, trust each other. संदेह मत कीजिए, क्योंकि संदेह एक कीड़ा है, एक डिजीज है. सो दूर रखिए अपने आप को इससे. विक्टिमाइज्ड मत हो जाइए, नहीं तो आपका रिलेशनशिप पूरा बिगड़ जाएगा. Do you want that? Certainly not. Let's see what the angels has in store for you. This could be the one. This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. This is the message from the angels. हो सकता है आप सोच रहे किसी इंसान के बारे में. This could be for some Aquarians and the
I mean, stories can vary, you know, stories can vary. So just take it as it resonates. This could be your side, Aquarius. This could be your partner's side. Or else, roles can be reversed also. This could be your partner's side. This could be your side. Just take it as it resonates with you. जैसा रेजोनेट करेगा वैसे लीजिए अपनी रीडिंग, इस रीडिंग को, अपने सिचुएशन को, क्योंकि मेरे से बेहतर आप जानते हैं आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग. सो सबके साथ रेजोनेट ना भी करे, किसी किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, ऐसा हो सकता है. एक्यूरियंस भी बहुत है. कुछ एक्यूरियंस के साथ एक स्टोरी रेजोनेट करेगा, कुछ एक्यूरियंस के साथ और एक अलग स्टोरी, दूसरा स्टोरी रेजोनेट करेगा, ऐसा भी हो सकता है. सो जस्ट टेक अकॉर्डिंगली एज इट रेजोनेट्स विद यू. ओके, सो द एंजल सेज दिस कुड बी द वन. यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक. अगर आप तलाश कर रहे किसी की प्यार करने के लिए, आपका मन है किसी से प्यार करना, या फिर आप मिले हैं लेकिन आप डाउट कर रहे, सोच रहे कि इसको प्यार करे या ना करे, इमोशनली इन्वेस्ट करे या ना करे, क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है. इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ जाता है इसमें, बहुत शक्ति, बहुत ताकत जाता है इस इन्वेस्टमेंट में. तो एंजल्स का कहना है यस, दिस कुड बी द वन. यू हैव ऑलरेडी मेट योर रोमांटिक पार्टनर यू सीक. This was all about the feelings card. Let's move on to the intention card. Reflection. Give each other some space at the moment. Second time आया ये बात. इसका मतलब ऐसा कुछ डेफिनेटली चल रहा है आप लोगों के बीच. ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर ऑब्सेशन, ओवर द टॉप जा रहे हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, या फिर कोई एक भी कर सकता है. इधर एक्यूरियस, इट कुड बी यू और योर पार्टनर. सो स्टॉप इमीडिएटली, डोंट डू दैट, चेंज योर हैबिट्स. रिफ्लेक्ट कीजिए आप जो कर रहे हैं, आपके एक्शंस पे, आपके डूइंग पे रिफ्लेक्ट कीजिए. गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट. ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट. मैंने अभी ट्रस्ट के बारे में कहा था थोड़ी देर पहले. ट्रस्ट, अपने पार्टनर को ट्रस्ट कीजिए, खुद को ट्रस्ट कीजिए कि वो मेरे बगैर जा रही है या जा रहा है, इसका मतलब किसी और से उसका अफेयर चल रहा है, किसी और के साथ उसका बॉन्डिंग है. ये सब गलत बातें मत सोचिए, इससे आपका ही नुकसान होगा. मैनिफेस्टेशन भी उस टाइप का फिर होगा. मेरे YouTube वीडियोस में, YouTube चैनल में मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी वीडियोस है कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन. जो थॉट से हम लोग रियलिटी में लाते हैं, जैसा सोचेंगे आप वैसा आपका रियलिटी बन जाएगा, वैसा आपका लाइफ बन जाएगा, वैसा आपका लव लाइफ बन जाएगा. तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू थिंक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट व्हाट यू थिंक. Watch your thoughts, observe your thoughts and change it accordingly. Do the needful. तो स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को. Aquarius, this could be you, this could be your partner. So अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, ट्रस्ट कीजिए, हैव फेथ दैट जो होगा सही होगा. ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट. एंजल्स का कहना है आप लोगों में केमिस्ट्री है, लेकिन केमिस्ट्री इतना जब भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाए, जिससे शक पैदा हो. ज़्यादा ऑब्सेशन रहने से, एडिक्शन रहने से ऐसा ही होता है. कंट्रोल इश्यूज तब आने लगता है. शक अगर आता है दिमाग में तो कंट्रोल इश्यूज आता है. नहीं, तुम मेरे बगैर नहीं जाओगी, जहाँ जाओगी मेरे साथ ही जाओगी, या जहाँ जाओगे तुम मेरे साथ ही जाओगे, मेरे बगैर नहीं जाओगे. तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा या चलूँगी. किससे मिले, फ़ोन चेक करना, ये वो फलाना धमाका, कितना कुछ तो होता है रिलेशनशिप में. माय गुडनेस, आई फील स्टन्ड कि ऐसा भी होता है रिलेशनशिप में. ऐसा करना चाहिए वाकई में. तब
प्यार कहाँ है? वेयर इज लव देन? लव इज नोवेयर बिकॉज दिस इज नॉट लव. सर्टेनली दिस इज नॉट लव. दिस इज पोजेसिवनेस, दिस इज ऑब्सेशन, दिस इज एडिक्शन. एंड ये सब लव का डिस्क्रिप्शन नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अपने हैबिट्स को बदलिए. आप लोगों में केमिस्ट्री है, लेकिन उस केमिस्ट्री को बैलेंस वे में यूज कीजिए. बैलेंस, मेंटेनिंग बैलेंस इज वेरी वेरी नेसेसरी, वेदर इन लाइफ, whether in general, whether in your love life, whether in career, professional life, family life, anywhere. Balance is the overall theme in all relationships. Okay? Okay. Next card of actions. Emotions are a natural and necessary part of life. See. But they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. अभी मैंने कहा था कि ओवर द टॉप जाके, ओवरबोर्ड जाके, ओवर पोजेसिवनेस, ओवर ऑब्सेसिवनेस ऐसा कुछ चल रहा है. इसका मतलब आप लोगों के बीच, आप दोनों के बीच, ये आप भी हो सकते हैं क्यूरियस, आपका पार्टनर भी कर सकता है ऐसा आपके साथ. तो इससे ऑब्वियसली आपका लव खत्म हो जाएगा, फिर मर जाएगा लव. तो दम घुटता है, फिर चोक्ड, इंसान गेट्स चोक्ड एंड फील चोक्ड, यू नो, क्योंकि कोई फ्रीडम नहीं है. हमेशा कंट्रोल 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 कंट्रोल. माय गुडनेस, दैट इज सर्टेनली नॉट लव. Isn't it? Are you getting my point? So emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. कब आपका मेंटल फॉग क्रिएट होगा? कब आप धुंधला देखेंगे? जब ओवरली इमोशनल हो जाएंगे. इमोशंस जब ओवरवेलमिंग स्टेज में पहुंच जाएगा, तब जाके दिमाग काम नहीं करता है. चाहे इमोशंस गुस्से का हो, चाहे इमोशंस डिप्रेशन का हो, सैडनेस का हो, हैप्पीनेस का हो, कुछ भी हो. ओवरली होना मतलब ही बैलेंस खो देना. Isn't it? ओवर अंडर बैलेंस बीच में होता है. इसका भी थोड़ा सा पार्ट रहे, इसका भी थोड़ा सा पार्ट रहे, तब जाके दोनों को लेके बैलेंस होता है. बैलेंस में 2 स्केल्स रहता है, आपको पता है ना. एक से बैलेंस नहीं होता है. एक के ऊपर ज़्यादा अगर चढ़ गया वेट तो ऑब्वियसली वो नीचे हो जाएगा, और जिसका कम रहेगा वो ऊपर चला जाएगा. तो बैलेंस कीजिए, दोनों में वेट बराबर डालिए. ओके. सो कोई भी अगर नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव फीलिंग्स हो, उसको लेट गो कीजिए. शक करना लेट गो कीजिए. नहीं तो आप शक करेंगे तो और ज़्यादा डिसेप्शन आपके लाइफ में आएगा. देखिए डिसेप्शन का कार्ड आया. सो डोंट डाउट योर पार्टनर. आप सच सच उनसे बैठ के बात कीजिए, खुले दिल से बात कीजिए, दिमाग से नहीं, खुले मन से बात कीजिए. बी क्लियर इन वॉट एवर यू आर सेइंग, बी क्लियर इन योर टॉक्स. Discuss it meaningfully and responsibly, because आप लोगों के बीच कोई एक मास्क पहन के चल रहा है, इसीलिए डिसेप्शन बोला गया है यहाँ पे. सो बैठ के बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बीच केमिस्ट्री तो बहुत है, लेकिन ओवर पोजेसिवनेस, ओवर ऑब्सेशन ओवर क्या, ऑब्सेशन खुद ही एक खराब आदत है. यू नो, ऑब्सेशन खुद एक खराब आदत है. एडिक्शन खुद एक खराब आदत है. इसका और ओवर और अंडर क्या. तो इसको हटाइए, बैलेंस लाइए अपने जीवन में. लेट्स सी द अदर साइड. पावर. You instinctively know
what is right for you, and you have the power to say no or walk away at any time. This is the message. This has come out as a feeling card. Power, you instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or walk away at any time. Let's see, I'll clarify this with the angel guidance. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Your love life is ascending to a higher level of commitment. पावर हम लोग दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक पॉजिटिवली, एक नेगेटिवली, एक हाँ पे, एक ना पे, isn't it? येस नो दोनों में ही हम लोग पावर प्ले कर सकते हैं. तो पावर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यू इंस्टिंक्टिवली नो, हम लोग को इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है कि ये बंदा सही है मेरे लिए, ये बंदी सही है मेरे लिए, पता चल जाता है. क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री की भी बात आई थी कि यू हैव अ वेरी गुड मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड वेरी गुड केमिस्ट्री बिटवीन यू. सो पता चल जाता है. तो जो सही लगे वही कीजिए. अगर आपको लगे कि नहीं मैं इसको ना बोलूँगा या ना बोलूँगी तो ना बोलिए. अगर आपको लगे कि नहीं मुझे हाँ बोलना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़िए. क्योंकि एंजल्स का गाइडेंस ये है, ये एंगेजमेंट वाला कार्ड आया है. एंजल्स का कहना ये है, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. तो डरिए मत, डोंट बी स्केर्ड. If you're thinking he or she is not the right person, if your feelings are saying, if you're having those kind of feelings, then it's a confirmation from the angel that your love life is ascending to a higher level of commitment. And what is that commitment? You guys will be getting engaged, या फिर engagement हो चुका, या फिर होने को है, होने वाला है, ऐसा कुछ. Okay, let's move on to the card of intentions. Aquarius people, intentions. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Certainly, जो कंट्रोल में नहीं है उसको कैसे चेंज करें, isn't it? जो कंट्रोल में नहीं है उसको कैसे चेंज करें. जो कंट्रोल में है, जो कर सकते हैं, उस पे गौर फरमाएं, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसको चेंज कीजिए. पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, अपने इनर पीस के लिए एक्सेप्ट कीजिए. एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए, isn't it? शांति से बढ़कर कुछ भी, कुछ भी बढ़कर नहीं है. इट्स अ ब्लेसिंग. इफ़ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, नो दैट इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग. सो एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज इट इज़ द की टू योर इनर पीस. तब जाके आप मन में शांति पाएंगे. एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए. कंट्रोल करके उसको चेंज करने का कोशिश मत कीजिए. उस बंदे को या बंदी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए. बहुत लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं. ऐसी चेंज प्लीज़ मत करने की कोशिश कीजिए. सोचिए भी मत. जो जैसा है उसे ऐसा ही रहना दीजिए. हाँ, अगर कुछ लगे कि समझाना ज़रूरी है तो बैठ के प्यार से समझाइए. बैठिए एक दूसरे के साथ, फिर प्यार से समझाइए एक दूसरे को. लेकिन कंट्रोल करना, ऑब्सेसिव हो जाना, एडिक्टिव हो जाना, पॉजेसिव हो जाना, certainly not. There is no point trying to change that is beyond your control. Let's see what angel has in store for you. Religious factors.
Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. हो सकता है आप दोनों के बीच अनबन हो रहा है जो वो कुछ religious factors उसमें involve हो. Since this card has come out as an intention, maybe religious factors काम कर रहा होगा, क्योंकि religious या फिर religion अलग होते हैं तो फिर बहुत कुछ अलग होता है. हम लोग का थॉट प्रोसेस अलग होता है, अपब्रिंगिंग अलग होता है, कल्चर अलग होता है, खाना, कपड़ा, वेशभूषा, सब कुछ अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, बहुत कुछ अलग होता है, सब कुछ अलग ही हो जाता है इनफैक्ट. तो प्यार को बरकरार रखिए. कोई भी फैक्टर्स हो, चाहे रिलीजियस हो, कोई भी हो, रिलीजियस फैक्टर्स आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस कर रहा है. दिस इज़ व्हाट द एंजल हैज़ टू से. तो इसको कंट्रोल मत कीजिए. ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर अपने रिलीजन में रहना चाहता है, कन्वर्शन अगर नहीं करना चाहता है, अगर आप दोनों अलग अलग रिलीजन में हैं, कन्वर्शन नहीं करना चाहता है, तो लेट इट बी लाइक दैट. एक्सेप्ट हिम और हर लाइक दैट. डोंट ट्राई टू कंट्रोल दैट पर्सन. वो जैसी है, जैसा है, उसको वैसा ही रहने दीजिए. आप प्यार करते हैं ना उससे, तो फिर ये सब क्यों मैटर कर रहा है? Isn't it? रिलीजियस फैक्टर्स क्यों मैटर कर रहा है? फिर प्यार ही करते हैं तो प्यार को प्यार जैसा ही रहने दीजिए, तभी वो सही मायने में प्यार कहलाएगा. अदरवाइज इट्स नॉट लव. देन इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीबडी एंड एनीबडी. सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता है. Let's see what the action card has in store for you. Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Don't make decisions based on guilt. जब आप गिल्ट में हैं तब कोई भी डिसीशन मत लीजिए. जब आप डाउट में हैं तब कोई भी डिसीशन मत लीजिए. जब आप गुस्सा कर रहे हैं तब कोई भी डिसीशन मत लीजिए गुस्से में, क्योंकि इसका परिणाम, अंजाम इसका सही नहीं होगा. नहीं हो सकता इसका अंजाम सही. गलत ही होगा जो होगा. माइंड को काम डाउन कीजिए, गिल्ट से बाहर निकलिए, तब जाके डिसीशन लीजिए. कुछ डिसीशन अगर लेने वाला सिचुएशन है आपके लाइफ में, इट कुड बी रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर्स ऑल्सो, और इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी रिगार्डिंग योर एंगेजमेंट ऑल्सो. रिफ्लेक्ट कीजिए, थिंक what you should do. Only then, and think it with a calm mind, peaceful mind. अभी पीस की बात आई थी ना यहाँ पे इस कार्ड में. So accept it, because acceptance is the key to inner peace. Don't try to control everything. Don't take any decision based on guilt, because you can't be true to yourself then, you can't be true to others then. पूरा डिसीशन, सारा डिसीशन, कोई भी मामला हो, गलत हो जाएगा. और गलत होगा तो फिर क्या होगा? फिर आप रिग्रेट करेंगे. अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था. Isn't it? बाद में पश्चाताप होता है ना हम लोगों को. तो इसको मौका मत दीजिए, इस पश्चाताप को मौका मत दीजिए. यही कहा जा रहा है. Let's see what angels have to say. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Pay attention to the red flags.
द साइंस आर कॉशनिंग यू। ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है एक्शन लेने के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं किसी बारे में, लव लाइफ के बारे में एक्शन लेंगे, तो ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि अच्छी तरह से देख लीजिए, सोच लीजिए। यूनिवर्स हम लोग को हमेशा साइंस देता है, सिंबल्स से बात करता है यूनिवर्स, लेकिन हम ही लोग समझ नहीं पाते बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड। वी आर नॉट कनेक्टेड टू आवर इनर मोस्ट सेल्फ। हमेशा काम, भागा भागी, दौड़, ऑफिस घर काम, ऑफिस घर काम, यही सब करते करते ज़िंदगी बीत जाता है। नहीं शांति कहाँ है? बैठिए अपने साथ, अपने आप को लेके सिर्फ बैठिए एकांत में। क्वाइटन योर माइंड, मेडिटेट कीजिए, देखिए यूनिवर्स क्या साइन एंड सिंबल्स दे रहा है, दिखा रहा है आपको, या फिर दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, उसको पहचानिए। पे अटेंशन टू दोज रेड फ्लैग्स। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आया है, इसीलिए यूनिवर्स का, एंजल्स का ये कहना है। ये गाइडेंस के तौर पे लीजिए। द साइंस आर कॉशनिंग यू, द साइंस आर वार्निंग यू, सो प्लीज पे अटेंशन। Look at the red flags that universe is showing you as a sign or as a symbol, because it's a caution, it's a warning. ये एक्शन का कार्ड है, सो आपको ऐसा करना पड़ेगा फिर एक्शन में। सो अच्छी तरह से सोच समझ के एनालाइज कीजिए अपने रिलेशनशिप को। बहुत सारे फैक्टर्स बहुत एक्यूरियस के लिए हो सकते हैं। देखिए आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है। Now I'll pick up the next card, which is of True Emotion Oracle deck. This card is of True Emotion Oracle deck. So Aquarius people, you can watch it as a sun sign, you can watch it as a moon sign, you can watch it as a rising sign or ascendant sign, and you can watch it as a Venus sign. All these 4 signs will validate for my reading. And please do the needful, whatever is being asked by the universe. Look at those red flags, क्योंकि वो caution, warning की तरह है आपके जीवन में। So इसे महत्व दीजिए, गौर फरमाइए इस मुद्दे पे। Okay, so this is a jumping card. Now I'll pick up another card, the last card of the deck, Oracle deck, from the Fairies Oracle deck. Okay, done with shuffling. Well, the true emotion says, look at this card first. You're getting a mirror image. Well, it says, I still feel the same for you. I still feel the same for you. कभी कभी होता है, बहुत कुछ एक रिलेशनशिप में होता है। इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी देखिए, बहुत कुछ एक रिलेशनशिप में होता है। उतार चढ़ाव बहुत तरह का होता है, लेकिन फिर हम लोग वापस आते हैं, क्योंकि उस इंसान के प्रति मेरा वो लव फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स एक ही जैसा है। वो डीप लव अभी भी है, तभी वो ट्रू प्यार है, ट्रू लव है। उतर चढ़ाव हर एक रिलेशनशिप में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उस इंसान को छोड़ के चले जाना।
isn't it? तो यहाँ पे कहा जा रहा है I still feel the same for you. Aquarius, it could be you, it could be your partner, anybody. Let's see what the fairies have to say. Tree wisdom. Tree wisdom. This tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sounds it makes. ये विजडम ट्री है जिसके बारे में बोला जा रहा है. ये विजडम ट्री है. ये आपको नेविगेट करेगा थ्रू द करेंट सिचुएशन. यू आर फेसिंग सम troublesome moments and incidents in your life, right, Aquarius? It could be for some Aquarius, not for all Aquarius. So those who are facing this kind of situation, troublesome phases in their life, still you feel the same for your partner, still you have the same deep love, true love for your partner. So ये विजडम की ट्री विजडम का कार्ड आया है. तो अपने बुद्धि से सोचिए, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस किया है उसको तो ऑब्वियसली क्रॉस करना पड़ेगा. एक जगह स्टेगनेंट हो जाने से तो नहीं चलेगा ना. यूनिवर्स भी आपको रेड फ्लैग्स का सिग्नल दिखा रहा है. इसका मतलब क्या है? देखिए कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कहाँ कॉशन कर रहा है, वार्निंग दे रहा है यूनिवर्स. ये आपका कुछ फ्लॉज एंड फॉल्ट्स हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के बारे में भी कुछ फ्लॉज एंड फॉल्ट्स हो सकता है, रिलेटेड टू द नेचर, यू नो, अपब्रिंगिंग, बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है. सो विजडम अप्लाई कीजिए. विजडम से बढ़कर कोई भी बुद्धि नहीं है. Be wise, choose your thoughts wisely and navigate through this troublesome phase, because universe is guiding you. Angels and fairies are guiding you. Listen to their signals, listen to their warnings और change लाइए अपने आप में, अपने love life में, अपने relationship में. This is how you can change your current situation through your wisdom. Be wise. Choose your thoughts wisely. कोई भी थॉट्स आए तो उसे ऐसे ही मत एक्सेप्ट मत कर लीजिए. अगर स्पेशली नेगेटिव कैटेगरी का हो तो, पॉजिटिव हो तो ही एक्सेप्ट कीजिए. सो चूज योर थॉट्स. वी हैव द पावर टू चूज आवर थॉट्स. एवे कोई थॉट्स आए और एक्सेप्ट कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, या ऐसा होना नहीं चाहिए. बिकॉज सिंस वी हैव द पावर, वाई शुडंट वी अप्लाई इट, इजंट इट? ऐसा सोचिए, इस तरह से सोचिए कि वी हैव द पावर टू चूज, वी हैव द पावर टू मैनिफेस्ट. मेरे मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी मैंने कहा वीडियो है मेरे चैनल में. पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर भी वीडियो है मेरे चैनल में. प्लीज़ रेफर टू दोज वीडियोज़ एंड यू विल सर्टनली गेट सम गाइडेंस एंड नॉलेज थ्रू दोज वीडियोज़ ऑफ माइन. सो Aquarius people, here I end your reading. Hope you liked it, enjoyed it, and please subscribe to my channel. Wish you a very good life, very good love life, a great love life. Wish you all the very best in your love life. Thank you so much for watching my reading. See you in my next reading. Take care. Bye-bye.